Alright, it's 7th of January 2025, and I'll be doing 100 push ups for the next 100 days shirtless. And today I decided that I should record this voiceover at the same place I record my videos, and yeah, my rooftop. But the catch is it's a bit too noisy. But then I thought, who cares? Who gives a flying F? It's just for my own memories, and here goes my alarm. Wait a sec. Okay. And yeah, so I thought it'll be fun, a new experience maybe for this voiceover. Okay, and what should I blabber today? Yeah, no, I had something planned in my mind before coming, and I thought I should what? Yeah, but there's like I should like set up the plot first before explaining what I thought I should blabber about, and that was like yesterday I was talking about my friend, one of my friend, and somehow I didn't realize I was just giving a story time content, which like contradicts my purpose. So what I thought uh, before sleeping yesterday, that I should like how do I put this? Like I should discuss my ideologies, the things that I believe in, that I don't, all of those shit in this videos that I can compare in my future, like what I was thinking back then when I was 18 years old, and what I like how do I put this, how do I perceive things now, getting it? Okay, I get it now. Maybe it's the language. Okay. Okay, I'm not so good at explaining things in English. Maybe I should just revert back in Hindi. But you know what? I'll just get conscious about it, that if I don't explain things that properly, it'll just, you know, make me feel ashamed on my language. It'll just demotivate me. Like, the fuck? How the fuck can everything start getting demotivating me? Like, is that even. Dude, that was not even grammatically correct. Fuck that, I don't care. Okay. I don't wanna take reshots in these recordings at least. Okay, तो फिर बैक टू हिंदी. ओके, तो भाई मैं बोल क्या रहा था, हाँ, ओपिनियन. हाँ, मैं ये कह रहा था कि जैसे कि जो जो चीज़ें मैं सोचता हूँ, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मीट ईटिंग, मैं पता नहीं, मेरी मम्मी मतलब मेरे पूरे परिवार को ये लगता है क्योंकि मैंने भगवत गीता पढ़ लिया, अपेरेंटली मुझे हिंदी में बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पढ़ा जाता. तो मैंने भगवत गीता पढ़ ली, इस वजह से मैंने मीट खाना छोड़ दिया, विच इज़ एब्सोल्युटली नॉट द एक्चुअल, लाइक दिस इज़ सम पार्ट ऑफ इट, मे बी, बट दिस इज़ नॉट द होल स्टोरी. हुआ यूँ था, मतलब यार, आई somehow I don't even, नहीं, I know the story, you know the story, okay. तो हाँ, तो फिर वो सबसे बड़ा रीज़न था, यू नो दैट what is this, ठीक है. तो वो रीज़न है. और यहाँ पे लगता है सबको कि मैं मीट इसलिए नहीं खाता क्योंकि मैंने भगवत गीता पढ़ लिया, ये सब वो सब एब्सोल्यूट शिट. और मुझे एक्सप्लेन भी नहीं करना, लाइक अगर उन्हें लग रहा है और इस वजह से वो मुझे नहीं भी खाने के लिए एनकरेज टाइप भी कर रहे हैं, तो भाई ये तो अच्छा ही है ना. फिर ऐसे ही, मतलब पर्पस चाहे जो भी हो, मेरा मतलब मोटिव तो हो रहा है सिर्फ, तो फिर काफ़ी है वो. तो फिर मतलब जैसे कि हाँ, अभी मैं मीट नहीं खा रहा हूँ, तो क्या पता मैं आगे जाके मेरा बदल जाए देखने का इस पे नज़रिया, बस जो भी बोलते हैं, बदल जाए और फिर मैं खाने लग जाऊँ और फिर सोचूं कि मैं पहले क्या सोचता था. तो मतलब मैंने अभी, नाउ आई एम इन 12th एंड आई नो अ क्लियर, लाइक आई कैन draw a proper barrier between that class 10th and 9th, mid section, maybe somewhere around October to November period, जब मैंने डेथ नोट देख लिया. ओके, तो फिर उसके बाद का जो पीयूष है और उससे पहले का पीयूष है, भाई मतलब बहुत ही ज़्यादा गैप है. मतलब मेरी बहुत ही ज़्यादा ब्रेन फक हुआ था भाई डेथ नोट देख के, कि लाइक व्हाट द फक भाई, देयर इज़ नॉट अ क्लियर ब्लैक एंड वाइट थिंग इन दिस वर्ल्ड, लाइक एवरीथिंग इज़ इन अ ग्रे एरिया. लाइक मुझे, हाँ, ये मैंने बहुत सारी स्टोरीज में ऑलरेडी पढ़ रखा था, वो बचपन से ही होते हैं यार ये, जो जब भी कोई पूजा स्थापित होती है घर में, तो फिर ऐसे ऐसी स्टोरीज आती रहती हैं, तो लगता है कि हाँ ठीक है, कुछ भी अच्छे से सही नहीं है, कुछ भी अच्छे से गलत नहीं है, एवरीथिंग इज़ इन द ग्रे एरिया. बट भाई जो डेथ नोट, मतलब कुछ चीज़ें हिट कर जाती है ना,
तो भाई वो हिटिंग पॉइंट शायद मेरा वो डेथ नोट से था, ठीक है। तो फिर उसके बाद से तो फिर आई हैव अ क्लियर लाइक, वो कोई स्पेक्ट्रम में नहीं जा रहा था, उसमें बहुत ही ज़्यादा क्वांटाइज्ड हो गई थी चीज़ें। तो वो वैसी चीज़ें अब मुझे अपने आगे के लिए भी करनी है। लाइक अभी मैं 18 का हूँ, तो क्या पता मैं जब 22 का हो जाऊँ तो फिर मेरा कुछ और परसेप्शन हो चीज़ें देखने का। लाइक अभी मैं बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड अटैक ऑन टाइटन से हो रखा हूँ भाई, पूरे दिन OST सुनता रहता हूँ भाई साहब। मतलब मेरे स्पॉटिफाई का लिसनिंग टाइम शायद पिछले महीने का था, क्योंकि देखो मैंने पिछले महीने ज़्यादा वो चलाया नहीं था स्पॉटिफाई, मैंने ज़्यादा यूट्यूब चलाया था। तो पर फिर भी उसमें आया था मेरा 18 नहीं 1.8 के मिनट्स, और उसमें से लाइक 95% ऑफ द टाइम बस अटैक ऑन टाइटन के OST सुन रहा हूँ, जो कि टोटली कुछ 5.5 घंटे की है। भाई मैं पूरे महीने बस वही सुन रहा था, और यूट्यूब पे भी मैं वही सुन रहा था भाई साहब। मतलब OST तो अलग ही बात है, डेथ नोट की भी एक टाइम था भाई साहब, OSTs पागल हो गया भाई उनके पीछे तो मैं। हाँ तो फिर मतलब ये करंट स्टेट है मेरा, क्या पता आगे जाके कोई और ही आने में पसंद आ जाए, मतलब कुछ भी और पसंद आ जाए, नॉट इवन एनिमेस, कुछ भी, मतलब बिल्कुल ही बदल जाऊँ, फिर मैं इसको देख के हंसूँ कि भाई मैं क्या क्या करता था पहले, ये सब बकचोदियाँ वगैरह। तो फिर मैंने सोचा है कि मैं वो जो सोचता हूँ ना चीज़ों के बारे में, तो मैं वो सब बताऊँगा। तो हाँ, दिस इज़ व्हाट इट इज़। ओके, तो हाँ मैं स्टार्ट कैसे करूँ। ओके हाँ, तो फिर आज मैं लेट हो गया। हाँ, और एक और बात, अभी जो ये जो गैप देखा है, ये जो 8:30 के बाद थोड़ा सा आगे बढ़ा, उसके बाद सीधा 9 बजे, वो था क्योंकि भाई आज मैं उठा ही 8:15 के आसपास था। तो फिर भाई मुझे बीच वर्कआउट के बीच ही भाई मुझे आ गया प्रेशर। ये इतना बड़ा गैप था नहीं, ये मुझे प्रेशर की वजह से आया इतना बड़ा गैप, वरना भाई आज का दिन मैं शायद जल्दी निपटा देता। और हाँ यार, आज के दिन मैंने एक और चीज़ देखी कि जो वो मैं बहुत ही क्लोज, मतलब ये जो टाइल्स है ना, मैं उसके अकॉर्डिंग अपने हाथ रखता था और फिर पुशअप्स मारता था। और मैं अभी तक सोच रहा था कि भाई मेरी पुशअप स्ट्रेंथ अनलॉक क्यों नहीं हो रही अभी तक। मतलब मैं पहले 2 दिन ही रेगुलर हो जाता था ना, फिर मैं शायद 30-35 आराम से हिट करता था, इतने पुशअप्स आराम से हिट कर लेता था मैं। पर अब यहाँ पे हो ही नहीं पा रहा। मैं मतलब हर 20 के बाद गैप ले रहा हूँ, 25 के बाद गैप। भाई मतलब मुझे लगा भाई क्या हो गया, मैं ज़्यादा कॉन्शियस हो जा रहा हूँ क्या वीडियो देख के। फिर नहीं, ऐसा भी नहीं है। फिर आज के ही दिन बीच, मतलब शायद जो दूसरा सेट था वॉशरूम से आने के बाद वाला, उस सेट में मुझे पता चला कि मैं बहुत ही ज़्यादा क्लोज रख रहा हूँ अपने हाथों को। तो ओह, तो और फिर हाँ, आज मैंने देखा कि ये सब क्या होता है। तो उन्होंने वो गूगल वगैरह पे देखा, तो मुझे पता चला कि ये शोल्डर्स बड़े होते हैं उससे अब क्लोज मारने पे। हाँ तो थोड़ा मतलब डायमंड पुशअप के क्लोज जाते रहोगे तो उतने ज़्यादा शोल्डर्स और ये ट्राइसेप्स हिट होते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि ये करते हैं ना, क्यों नहीं। तो फिर मैं सोच रहा हूँ कि मैं बस क्लोज रेंज में मारूंगा सारे सेट वगैरह सब कुछ, सेट रेप जो भी होता है। तो फिर हाँ यही है। तो फिर 2 चेंजेस, एक तो अपनी आइडियोलॉजीज़ बताऊंगा, और दूसरी बात ये क्लोज रेंज ही मारूंगा अब से सारे। और हाँ यार, पॉस्चर तो अभी तक ठीक नहीं हुआ। हाँ, और ये जो पैंट 3 दिनों से दिख रही है, ऐसा नहीं है, ये मैं रखता हूँ, तुझे पता ही है मैं क्या समझा रहा हूँ, ठीक है। तो वो शायद कल अलग होगा पैंट। हाँ तो फिर ये भी हो गया। और क्या सोचा था मैं,